Hello and welcome. This is our lecture 4 of class 12, unit 1 electrostatics. And in this lecture, we will study the solutions of our revision question answers. So our first question was, how many electrons make 1 coulomb of negative charge? How many electrons? It means in this case, we have to find number of electrons. What we have to find? Number of electrons. And how much charge is given? 1 coulomb of charge. And I have told you in my previous video that how do we represent charge? By Q. It means Q given is 1 coulomb and we have to find N. And we all know the formula of quantization. Q is equal to N E, and Q given is 1 coulomb. N and E, we know everybody that charge on electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. And next is the calculation part only, and we will get the answer 6.25 and 10 raised to power multiply by 10 raised to power 18. I hope this is clear. Next question is, an ebonite rod is rubbed with fur or wool. What type of charge do they acquire? When we were studying about rubbing, in that case in my previous video I have told you, when we rub ebonite rod with fur, ebonite rod will get the negative charge and fur will get the positive charge. And I have told you the reason also, that fur has its electrons loosely bounded as compared to the ebonite रॉड. फर में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली बाहर आ जाते हैं. लेकिन एबोनाइट रॉड में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड ना होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर नहीं आते. तो फर के इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाते हैं? एबोनाइट रॉड में. एंड एबोनाइट रॉड विल गेट द नेगेटिव चार्ज and fur will get the positive charge. Next question was, what is meant by quantization of charge? This is we have already done in our previous video. The one who wants to do, please refer to our previous video. Next is, consider 3 charged bodies. हमारे पास 3 charged bodies हैं, P, Q and R. If P and Q repel each other, अगर P और Q एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? Repel. और P और R एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड इज व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन Q एंड R. Q एंड R के बीच में जो फोर्स है उसकी नेचर क्या होएगी? उसकी क्या वो अट्रैक्टिव होएगी, क्या वो रिपल्सिव होएगी? एंड द क्वेश्चन इज Q और R के ऊपर चार्ज कैसा होएगा? सेम होएगा, ऑपोजिट होएगा, क्या होएगा? एक तो हमें ये बताना है कि फोर्स कैसी होएगी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और दूसरा ये बताना है कि Q और R के ऊपर चार्ज कौन सा होएगा. आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन पार्ट. नाउ P and Q are repelling each other. Repulsion shows that they both have the same charge. And P and R is attracting each other. This attraction shows that कि P और R के ऊपर opposite charge होएगा. So सबसे पहले हम लेंगे P and Q. Since P and Q both are repelling, it means they both have the same charge. हम मान लेते हैं कि दोनों के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. क्लियर? Now next case they have given us P and R are attracting each other. Now P and R are attracting. Our supposition was that we have given positive charge to P. अगर P के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और P और R अट्रैक्ट कर रहे हैं तो R के पास नेचुरली कौन सा चार्ज आएगा फिर? नेगेटिव. सो R विल हैव नेगेटिव चार्ज. तो हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि P के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. Q के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. R के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. सो यहीं से हमें ये पता चल गया कि Q के पास पॉजिटिव चार्ज है और R के पास नेगेटिव, एंड दे बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो हमारी फोर्स तो हमें पता चल गई, दैट फोर्स बिटवीन Q एंड R विल बी अट्रैक्टिव. एंड Q और R के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस होंगे, तभी वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट. तो आपने आंसर कैसे लिखना है? Q एंड R विल कैरी ऑपोजिट चार्जेस. उन दोनों के पास क्या चार्जेस होंगे?
opposite and the net force between them will be attractive. इन दोनों के बीच में जो force होएगी that will be attractive. Next is, why does an ebonite rod get negatively charged on rubbing with fur? जब हम एबोनाइट रॉड को, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया भी है, एबोनाइट रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव, और फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव. अब फर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि फर ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं एबोनाइट रॉड को. और क्यों दिए हैं? आई हैव टोल्ड यू द रीजन. क्योंकि फर में इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंड होते हैं, और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना इज इजी, because electrons in fur are less tightly bound, or you can write here are loosely bound than the electrons in the ebonite rod. So that's why electrons in fur will come out easier as compared to the electrons in the ebonite rod. Our next question is, a glass rod rubbed with silk. एक ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ. रबिंग के बाद ग्लास रॉड के ऊपर कितना चार्ज आ गया? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सो व्हाट इज अ चार्ज ऑन सिल्क? अब देखिए, बिफोर रबिंग दे बोथ वर न्यूट्रल. आफ्टर रबिंग इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. एंड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना इधर पॉजिटिव चार्ज आया उतना दूसरी बॉडी के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज. सो फिर सिल्क के ऊपर कितना चार्ज आ गया? सो चार्ज ऑन सिल्क विल बी इक्वल, होएगा इक्वली, लेकिन उसके ऊपर साइन कौन सा आएगा? ऑपोजिट. अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव. आई होप दिस इज क्लियर. नेम टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वी हैव डन. Quantization, conservation, like charges repel each other, unlike charges attract each other. You can write additivity of charge also, and you can write their explanation from our previous video. Next question is, what is the value of charge on electron? Is a charge less than this value possible? अब हमने पिछली वीडियो में कर ही लिया था that charge on electron is minus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. इस चार्ज, क्या कोई ऐसा चार्ज है जिसकी वैल्यू इससे भी कम हो? नो, नो चार्ज एग्जिस्ट लेस देन दिस वैल्यू. दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. नेक्स्ट, नेम द सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. सीजीएस यूनिट हमने ऑलरेडी कर ली थी, स्टैट कूलम, एंड द एसआई यूनिट इज कूलम. एंड द रिलेशन बिटवीन देम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. 1 coulomb is equal to 3 multiplied by 10⁻9 stat coulomb. Next is, what is basic cause of quantization of charge? Charge की quantization का basic cause क्या है? So the basic cause was that only integral number of electrons, सिर्फ integer number जो है, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑल्सो Q इज इक्वल टू N ही. N क्या है? वही एक इंटेग्रल नंबर होएगा, और सिर्फ इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन इज, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर. कहते हैं हम लोग जो नॉर्मल रबर यूज करते हैं दैट इज इंसुलेटर, बट स्पेशल टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग. कहते जो एयरक्राफ्ट के टायर्स हैं उसको हम थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाते, बने वो रबर के ही होते हैं लेकिन वो प्योर रबर नहीं होता, प्योर इंसुलेटर नहीं होता, वो स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं. वाई इज दिस नेसेसरी? हमें उनको थोड़ा सा कंडक्टिंग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? द रीज़न इज, एज अ टायर्स रन ऑन रनवे, टायर्स रनवे पे जब रन करते हैं टायर्स चार्ज हो जाते हैं. क्यों? जब रन करेंगे देयर विल बी सम फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द ग्राउंड. जो हमारा ग्राउंड है, फ्लोर है, और टायर्स के बीच में आपस में क्या होएगी? टायर और ग्राउंड के बीच में आपस में क्या होएगी? कुछ फ्रिक्शन. एंड अगर हम परफेक्ट इंसुलेटर ले लेते हैं, इफ वी हैव कंसिडर्ड द परफेक्ट इंसुलेटर, तब क्या होएगा कि टायर और ग्राउंड जो हमारा है फ्लोर, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा. उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास कुछ स्पार्किंग हो सकती है,
कुछ फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. सो दिस इज़ द ओनली रीज़न वी डोंट कंसिडर द परफेक्ट इंसुलेटर. क्यों? क्योंकि परफेक्ट इंसुलेटर की वजह से फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन की वजह से हायर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हायर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से स्पार्किंग और फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. सो हम जब प्योर इंसुलेटर की जगह पे उसको थोड़ा सा कंडक्टिंग बना देते हैं, तो फिर जो हमारे पास एक्स्ट्रा चार्जेस डेवलप होते हैं ड्यूरिंग फ्रिक्शन, वो क्या कर जाते हैं, लीक बाहर निकल जाते हैं और स्पार्किंग और एक्सीडेंट्स नहीं हो पाते. Sparking and accidents due to fire are avoided. So I hope you all are clear with the revision question answers of this part. And in the next video, we will discuss the numerical part of our lecture. Thank you so much for watching.